Okay, students. So let's start with chapter number 15. The name of chapter number 15 is our environment. The weightage of this chapter is near about to 2 to 3 marks, and it's very important chapter because आपको 3 मार्क भी जाने नहीं देने हैं, ठीक है? इट्स वेरी इजी चैप्टर. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा. ये चैप्टर को हम 2 days में खत्म करेंगे. So today first part will come and tomorrow the next part will come. Okay, so let's start our chapter on environment. जैसे अवर एनवायरनमेंट स्टार्ट होता है, अगर कोई एनवायरनमेंट की बात करता है तो अपन को थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. अगर एनवायरनमेंट को हमने अच्छे से नहीं संभाला तो ये कोरोना से भी भयंकर बीमारी आएगी, देख लेना. द रीजन इज द यू कैन से 4 to 5 months ago जब बुश फायर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया को हिला के रख दिया था. सो this type of problems when happened, it's a very serious problem. Okay, so we have to take care of our environment, and you can say our environment is very important. So the awareness is very important, and you can say after awareness we have to do some, you can say, environment saving steps also we can take. Tree plantation already we people are doing day by day, and these are the efforts will make our environment very clean. So let's start our chapter. We have heard about the word environment often being used on the television, in newspaper, and by the people around us. Our elders tell us that the environment is not what it is used to be earlier. Others say that we should work in a healthy environment, and global summits involving developed and developing countries are regularly held to discuss environment issues. Even ऐसा बोल सकते हैं अपन कि ग्लोबली जो यू कैन से डेवलप्ड कंट्री है और यू कैन से डेवलपिंग कंट्रीज है, वो भी इस यू कैन से इन दिस 21st century they people are thinking about the good environment. And you can say in this chapter we shall be studying how various factors in environment interact with each other and how we impact the environment. So in you can say class 9 we saw how different materials are cycled in environment in separate biology biogeochemical cycles. हमने जो cycle 9th chapter sorry 9th standard में जो पढ़ी है उसके related CO2 cycle थी, N2 cycle थी. So these are the cycles we already studied in 9th standard. In these cycles, essential nutrients like nitrogen, carbon, oxygen, and water are changed from one from to another. We shall now see how human activities affect these cycles. So, what happens when we add our waste to the environment in our daily activities? इसके related मेरे पास एक अच्छा power presentation है, तो let me show you that presentation जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा. Okay, okay. So जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि एनवायरनमेंट के रिलेटेड बहुत सारे अब पेपर में भी न्यूज़पेपर में भी आने लग गया है कि एनवायरनमेंट टू बिकम अ की. इवन इफ अवर एल्डर्स भी हमको बोलते हैं कि एनवायरनमेंट को संभल के रखना चाहिए. जो ग्लोबल समिट होती है उसमें भी अभी मेन गोल यही है कि एनवायरनमेंट को कैसे रीडेवलप करना है, और टीवी पे भी ये सब आता रहता है. ठीक है. सो वन थिंग इज दैट एनवायरनमेंट को हम कैसे क्लीन कर पाते हैं. तो हम क्या करते हैं कि वेस्ट बहुत जनरेट करते हैं. इवन जो टीन्स आते हैं, जो कोका कोला और ये सब के भी टीन्स होते हैं. इवन वेजिटेबल्स के जो होते हैं, आफ्टर यूजिंग वेजिटेबल जो उसका पल्प निकलता है उसको भी हम निकलता है, वो टाइप का वेस्ट होता है. एक प्लास्टिक वेस्ट होता है और ये एकदम कचरा. ठीक है. सो दीज आर दी वेस्ट आर देयर. सो यू कैन से ये सारा वेस्ट बहुत हमको एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करता है. इवन इफ जो हमारे घर पे, जो मैंने ऑलरेडी आपको आगे बताया था कि ई वेस्ट बहुत बड़ा प्रॉब्लम. ई वेस्ट यानी क्या? हमारे सबके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वैसी होगी जो बिगड़ गई होगी और आज भी हमारे घर में है. सो ऐसे पूरे कंट्री में सारा इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट है वो एनवायरनमेंट को बहुत डिस्ट्रॉय करता है. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ वेस्ट. सो
कितने टाइप के वेस्ट है, तो हमको सबको पता है कि दो टाइप के वेस्ट है. सो वन इज द बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो बायोडिग्रेडेबल के रिलेटेड अगर बात करें, सो वेस्ट दैट get decomposed by the action of heat, the pressure and microorganism are known as a biodegradable waste. जो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है, जैसे ही आप जमीन में डालोगे, ये सारे जैसे वेजिटेबल्स के रिपर्स है, इसको आप जमीन में डाल दोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको आके खा जाएंगे और ये सब खत्म हो जाएगा. सो दीज आर द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. उसका कोई टेंशन नहीं है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, ठीक है. लेकिन जिसका टेंशन है वो है कौन सा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है. सो द वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज्ड एक्शन ऑफ हीट प्रेशर, जो मैंने बात की, जैसे ये वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के वेपर्स हो, या ये जैसे जो हमारे टीवी और एसी के रिलेटेड जो फिट जो बॉक्सेस होते हैं उसका जो वेपर्स हो, या काउडम्स हो, या लकड़े की चीजें कोई भी हो, दीज आर द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रेशर, हीट और ये सब दे के हम डिकम्पोज कर सकते हैं. लेकिन जो उस टाइप के वेस्ट है, जिस टाइप के वेस्ट दैट डू नॉट डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ हीट, प्रेशर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो हमको पता है कि एक तो प्लास्टिक का ले लेते हैं एग्जांपल, लेट्स से दी जो कांच के जो होते हैं उसका भी एग्जांपल आप ले सकते हो. टायर्स है, जो मैंने अभी बताया, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट है. सो these are all the non biodegradable waste. इनको आप जमीन में डालोगे तो वो डिकम्पोज नहीं होने वाले हैं. सो ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, कौन से वाले, नॉन बायोडिग्रेडेबल. जो डिकम्पोज नहीं होते हैं तो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला जाता है. ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको एग्जाम में कि गिव द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं इसका, ठीक है. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ वेस्टेज, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो हमने कहाँ तक खत्म किया, हमने जो खत्म किया, देखो यहाँ पे जो व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू एनवायरनमेंट, जो मैंने बात की ना, तो कौन कौन से वेस्ट होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल टू टाइप के वेस्ट होते हैं, वो हम डालते हैं. सो दिस आर द थिंग्स यू कैन ऐड. और यहाँ पे जो एक लाइफ प्रोसेस और एंजाइम्स के रिलेटेड एक दिस पैराग्राफ इज देयर. ये पैराग्राफ ऑलरेडी हमारा एक 6 चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसमें सब आएगा एंजाइम के रिलेटेड, तो अभी जाने देना उसको, ठीक है. So up to this we have covered. Let's start our next topic, that is nothing but the 15.2 ecosystem and what are its components. So ecosystem में क्या होता है कि the all organisms such as plants, animals, microorganism and human being as well as the physical surrounding interact with each other and maintain a balance in a nature. So all the interacting organism is an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. Thus, an ecosystem consists of biotic component comprising living organism and abiotic component comprising the physical factor like the temperature, rainfall, wind, soil and minerals. So जो ecosystem होती है, ecosystem का biotic और non-biotic ये टाइप का जो है, मैं आपको अभी प्रेजेंटेशन में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है. बट अभी यहाँ पे देखना, एक ये पैराग्राफ खत्म कर लेते हैं पहले. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विजिट अ गार्डन यू विल find different plants such as grasses, trees, flower bearing plants, rose, jasmine, sunflower, or you can say the animals like frogs, insects, birds. All these living organisms interact with each other and their growth. So reproduction and other activity are affected by abiotic component of ecosystem. पहला आया बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा आया बायोटिक कंपोनेंट. So garden in a ecosystem, other types of ecosystem are forest, ponds, lakes, and these are the natural ecosystem, while garden and crop fields are the human artificial ecosystem. चलो इसके रिलेटेड में आपको एक प्रेजेंटेशन है, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. चलो आ जाओ वापस. चलो, सो इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स के रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक में है, तो वो क्या बोल रहा है, इट्स वेरी इजी कि इकोसिस्टम जो होता है वो बायोलॉजिकल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करके ही होता है ऑर्गेनिज्म का. सो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है बायोटिक, फर्स्ट कंपोनेंट इज दैट बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट इज द बायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट में आप देख सकते हो कि सी टर्टल, फीसिस, प्लांट्स जो होते हैं उसको बायोटिक बोलेंगे.
और अबायोटिक जो है वो है वाटर, कोल्ड टेम्परेचर रॉक्स जो ऑलरेडी है प्रेजेंट, ठीक है, तो उसको अबायोटिक। तो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है कि सी टर्टल, फीसिस, प्लांट्स, दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से है, जैसे वाटर तो वो लाइव नहीं है, कोल्ड टेम्परेचर वो भी लाइव नहीं है, रॉक्स वो भी। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको अबायोटिक बोला जाता है, ठीक है। सो क्या होता है कि इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम ने हमारी बुक में जो डिस्कस किया है, जो ये है फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट इज द नेचुरल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है वो नेचुरल इकोसिस्टम है, वो किसी ने बनाया नहीं है। और ये गार्डन है वो ने हमने बनाया है। सो गार्डन इज नॉट द नेचुरल इकोसिस्टम, गार्डन इज अ, you can say human made human made ecosystem। जो यहाँ पे बात की, the natural ecosystem while gardens and crop fields are the human artificial ecosystem। so ये जो गार्डन है उसको हम ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब पहले जो है ये टॉपिक जो नेक्स्ट इसके बाद स्टार्ट होगा वो है इकोसिस्टम के रिलेटेड कौन कौन से प्रोड्यूसर और ये सारा है। तो ये जो टॉपिक है वो पहले अपन पीपीटी में समझ लेते हैं, जिससे ये सब बहुत आपको इजी हो जाएगा, आपको लगेगा कि इट्स वेरी इजी। ओके, तो ये सारा समझने की अगेन वी विल गो टू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, देन वी विल अगेन कम टू दिस पॉइंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इकोसिस्टम। ओके ओके, सो इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम में तीन टाइप का होता है। एक तो है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर किसको आप बोलोगे, जो अपना खाना खुद बनाता है उसको बोलेंगे प्रोड्यूसर। सो प्रोड्यूसर आर द ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। सेकेंड इज दैट कंज्यूमर। तो कंज्यूमर आर द ऑर्गेनिज्म विच रिसीव एनर्जी बाय कंज्यूमिंग देयर ऑर्गेनिज्म। सो कंज्यूमर वो क्या करते हैं कि वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिज्म में से, ठीक है। और डीकम्पोजर्स क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड एंड डिकेइंग। जैसे मैं डीकम्पोजर की बात करूं तो डीकम्पोजर वो होते हैं कि जो लोग मर जाते हैं, यानी जो एनिमल्स मर जाते हैं वो डिकेड हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसमें से वो अपना एनर्जी लेते हैं। सो तीन टाइप के होते हैं, वन इज द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर तो प्लांट है ही। कंज्यूमर यानी जो प्लांट्स को खाते हैं, हम कंज्यूमर होंगे क्योंकि हम प्लांट्स को ही खाते हैं, ठीक है। और डीकम्पोजर बिकॉज दे आर द ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो हमारे बुक में जो दिया गया है वो है फूड चेन के रिलेटेड। फूड चेन क्या होता है, फूड चेन यानी एक चेन बनी हुई है, जिसको हम फूड वेब भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो हमको पता है कि ग्रास को कौन खाता है, ग्रास को खाता है डियर, डियर को कौन खाता है, लायन। सो दिस इज अ फूड चेन, ग्रास को डियर खाता है, डियर को लायन खाता है। सो ऐसे फूड चेन पूरे फॉरेस्ट में चलती रहती है। और ये फूड चेन को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, अगर ये फूड चेन अगर डिस्टर्ब हो गई, सो क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको अच्छा खाना नहीं मिल पाता है एंड एवरीथिंग विल बी डिस्टर्ब। ओके, सो फूड चेन कभी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड नाइस फूड चेन। ग्रास को डियर खाता है, डियर को लायन खाता है, ठीक है। सो जैसे ही आप फूड चेन को देखेंगे, हमको पता है, क्या पता है कि फूड चेन में क्या होता है, पहले आता है प्रोड्यूसर, फिर आता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर आता है टर्सरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर हमको पता है, प्रोड्यूसर वो लोग होते हैं कि जो वन टाइप ऑफ प्लांट्स आप ले सकते हो कि प्लांट्स को आप प्रोड्यूसर बोल सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड आता है प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर किसको खाता है, प्रोड्यूसर को खाता है। तो वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है जो प्रोड्यूसर को खा जाता है, उसको हार्बीवर्स भी बोलते हैं हम, ठीक है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कौन, स्मॉल कार्निवर्स, ठीक है। और स्मॉल कार्निवर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर का दूसरा नाम ही स्मॉल कार्निवर्स है, यानी स्मॉल कार्निवर्स में जो जो एनिमल्स आते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, समझ में आ रहा है। और लास्ट में आता है टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर किसको खाते हैं, स्मॉल कार्निवर्स को खाते हैं। सो टर्सरी कंज्यूमर को लार्ज कार्निवर्स हम बताते हैं। सो दिस इज द फूड चेन। फूड चेन में कैसा आता है, पहले प्रोड्यूसर आता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर आता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और लास्ट में टर्सरी कंज्यूमर आता है। सो इस हिसाब से फूड चेन चलती है। दिस इज एग्जांपल इज वेरी सिंपलेस्ट एग्जांपल। ये आप एग्जांपल एज अ कैसे फूड चेन चलती है उसको समझने के लिए ले सकते हो,
ठीक है, आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन दी फूड चेन, तो फूड चेन समझाने के लिए ये छोटा सा एग्जांपल इज सफिशिएंट। ओके, लेकिन फूड चेन का ट्रायंगल अगर आपको पूछा जाए या 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाए तो पूरा फूड चेन एंड ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो जैसे ही अपन जो पीडीएफ देखते हैं चैप्टर की, उसमें मैं आप सब आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो, सो दिस इज नथिंग बट द फूड चेन। नेक्स्ट इज फूड चेन का वेब जो कैसे चलता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब एक समझना बात, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एंड समझ, अगर समझ में आया तो ही समझ में आएगा, तो पहले से अच्छे से कंसंट्रेट करना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा समझ लो कि सनलाइट है, तो सनलाइट में से जो एनर्जी है, वो सनलाइट में से एनर्जी प्रोड्यूसर 10% ही ले सकता है। प्रोड्यूसर जो एनर्जी ले सकता है उसमें से प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर में से 10% ही एनर्जी ले पाएगा। प्राइमरी में से जो सेकेंडरी वाले प्राइमरी को खाते तो उसमें से 10% ही एनर्जी मिल पाएगी, और टर्सरी है वो सेकेंडरी में से 10% एनर्जी ले पाएगा। यानी सब जो चेन है सब में से 10% 10% 10% ही एनर्जी कंज्यूम कर पाते, उससे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं हो पाती है। सो अगर अपन एग्जांपल ले कि जैसे सनलाइट के पास 10,000 यूनिट्स जितनी एनर्जी है, लेट्स एज्यूम दैट एग्जांपल, उसके पास तो बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन ऐसा आप एज्यूम कर लो कि सनलाइट के पास 10,000 एनर्जी है यूनिट्स की, तो प्रोड्यूसर को उसका 10% ही मिलेगा, यानी 10,000 का 10% आप करोगे तो 100 यूनिट्स मिलेगा। ठीक है, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाते हैं तो प्रोड्यूसर में अगेन 100 का 10% क्या हो गया, 10 यूनिट्स मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगेन सेकेंडरी कंज्यूमर किसको खाते हैं, प्राइमरी को, तो 10 का 10% करोगे तो 1 यूनिट हो जाएगा। अगेन टर्सरी कंज्यूमर खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर को, तो 1 यूनिट का 10% 0.1 यूनिट हो जाएगा, यानी 10% से पूरी सिस्टम चलती है। जो मैंने पहले आपको बताया ना कि ये पूरी जो सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम है वो 10% के मार्जिन से चलता है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द फूड चेन। जैसे मैं आपको बात करूं, आपके जो पीडीएफ में अपन देखेंगे, तो देखो जो मैंने आपको ये बताया कि कंज्यूमर्स जो 3 का हमने बताया ना, प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डीकंपोजर, जो पहले ही हमने डिस्कस किया था कि कहाँ था, ये रहा, देखो, प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर। सो आपको सारा उसके रिलेटेड वो क्या करते हैं उसके रिलेटेड ये सब याद रखना है। ठीक है, फिर आते हैं कहाँ पे थे, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डीकंपोजर के साथ साथ वो कैसे सस्टेन करते, क्या करते, ग्रीन प्लांट्स का क्या है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई ऑलरेडी डिस्कस। फिर जो है वो है ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड करते, प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर अगर फूड डेवलप ही नहीं करेगा, यानी प्लांट्स डेवलप नहीं होंगे, तो खाएगा कौन। ठीक है, सो इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसको हम फेड करते हैं, एंड द कंज्यूमर कैन बी क्लास वेरियसली एज हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स, पैरासाइट्स। कैन यू गिव द एग्जांपल ऑफ ईच कैटेगरी, ऑलरेडी हमको 9th स्टैंडर्ड में ये सब आ गया है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में अगर अपन डिस्कशन करेंगे, तो इनऑर्गेनिक और डीकंपोजर का रोल क्या है वो फूड वेब के रिलेटेड आएगा। जैसे फूड चेन्स और फूड वेब होती है, जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले आता है प्रोड्यूसर, फिर आता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और लास्ट में आता है टर्सरी कंज्यूमर। तो यहाँ से आपको फूड फूड वेब और फूड चेन का पता चल पाएगा कि कैसे कौन किसको खाता है ना। सो नीचे हमेशा जो होता है वो प्रोड्यूसर ही होता है, देखो, है ना, जो मैंने अभी ग्राफ आपको दिखाया था, देखो, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ये वाला, यस। तो प्रोड्यूसर है, उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी के बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी के बाद आते हैं टर्सरी कंज्यूमर। सो जो होते हैं वो हर्बीवर्स होते हैं, फिर स्मॉल कार्निवर्स और लार्ज कार्निवर्स। तो अगर अपन डिस्कस करें ये वाला, तो वो यही है, नीचे से प्रोड्यूसर ऊपर जाता है और लास्ट में टर्सरी कंज्यूमर तक आता है। सो दिस इज नथिंग बट द फूड चेन। एंड जो हमने बात किया ये वाला, ये था प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। So, जो the green plants in a terrestrial ecosystem capture about 1% of energy of sunlight that falls on their leaves and convert into the food energy, जो मैंने बात किया आपको।
फिर जो मैंने दूसरी बात जो की थी वो ये वाली कि एवरेज ऑफ 10% ऑफ फूड ईटन इन टर्न इनटू द ओन बॉडी मेड बाय अवेलेबल ऑफ नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। यानी जो होता है प्रोड्यूसर्स, जो होता है प्रोड्यूसर सनलाइट का 1%, उसके बाद देखो 10%, 10%, 10% जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही है ये। ठीक है, सो ये अच्छे से समझना कि 10% कैन बी टेकन एज एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट ईच स्टेप रीचेस नेक्स्ट लेवल टू कंज्यूमर। सो ऊपर तक जाते जाते वो क्या हो जाता है, 10% हो जाता है। ठीक है, since so little energy is available for the next level of consumer, food chain generally consists of only 3 or 4 steps. The loss of energy at each step is so great, so that very unusable energy remains after the 4 tropics level. जो हमने 3 tropics level already अभी पढ़े, these are the 4 tropics level. ठीक है, so it's very easy. There are generally number of individuals of lower tropic levels of an ecosystem, the greatest number of the producers. The length and complexity of food chains vary greatly. Each organism generally eaten by 2 or more other kinds of organism, which in turn are eaten by the several other organisms. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown in a branching lights called a food web. जैसे ये सारा फूड वेब आपको मैंने दिया हुआ है। आपको पता है कि फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक्स खाता है, और स्नेक को कौन खाता है, पिकॉक खाता है। इवन पिकॉक जो है वो इवन प्लांट्स तो खाता ही है। ठीक है, तो जो जिसको खाता है उसका मैंने एग्जांपल डाला हुआ है, समझ में आ रहा है, जिससे आप पूरा समझ पाओगे। सी टाइगर है तो टाइगर को कौन कौन, टाइगर किसको खाता है, उसका सारा जो एक वेब बनता है उसको बोला जाता है फूड वेब। ओके, सो अगर फूड वेब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये तो लिखना है और इसके साथ साथ ये बहुत अच्छे से समझाना है कि ये टॉपिक लेवल्स कैसे चलते हैं फूड चेन में। कभी कभी क्या होता है फूड वेब पूछा जाता है तो बच्चे सिर्फ ये फ्रॉग और स्नेक का लिख लेते हैं, ये नहीं लिखना है आपको। इंपॉर्टेंट थिंग्स ये टॉपिक लेवल्स एक्सप्लेन करने हैं, और इसमें एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वापस वीडियो को आप रिवर्स करके वो पॉइंट पे जाना और वापस 1-2 बार समझना, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। जो हर्बीवर्स और इसके रिलेटेड जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और ये है डायग्राम शोइंग द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में जो है एनर्जी कैसे फ्लो होती है वो वाला पॉइंट है। ठीक है, अब another aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our body through the food chain. You have read in class 9 how water gets polluted. Even हमने अभी जो 16 चैप्टर में भी वाटर के रिलेटेड पॉल्यूशन का पढ़ा। तो one of the reason is that use of several pesticides on other chemical to protect our crops from disease and pest. These chemicals are either washed down into the soil or into the water bodies. So from the soil, these are the absorbed by the plants along with water and minerals. From the water body, these are taken up by the aquatic plants and animals. So this is one of the ways in which they enter the food chain. As these chemicals are not degradable, these get accumulated progressively at each trophic level. As a human being occupy the top level in any food chain, तो हम इसके रिलेटेड अगर डिस्कस करना हो तो हमको पता है कि क्या होता है कि ये वर्ड को हम जो बोलते हैं, जो केमिकल्स हम डालते हैं प्लांट में, वो भी हमारी बॉडी में जाते हैं। तो वो क्यों जाते हैं? क्योंकि हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स डालते हैं। जो फार्मर्स होते हैं वो प्लांट को, जो यू कैन से एनिमल्स या छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स है उससे बचाने के लिए दे यू कैन से दे आर स्प्रिंकलिंग द पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन देयर फार्म्स। सो उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। Biological magnification refers to the process whereby pesticides move up the food chain and end up the accumulating in the humans. So जो food chain के अंदर जो होता है वो उसको डिस्टर्ब करता है। ये मत सोचना कि 10% हमारी बॉडी में जाएगा, ये तो पूरा हमारी बॉडी में आएगा। सो पेस्टिसाइड्स जितना हो सके उतना कम यूज करना है। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज अ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जो मैंने आपको बताया। हम उसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलेंगे। द रीजन इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? Biological magnification refers to the process whereby pesticides move up the food chain and end up accumulating in humans.
So this is all about the biological magnification. तो वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे. So this is the reason why our food grains such as wheat, rice, vegetable and fruits, even meat contain varying amounts the pesticides residues. They cannot always be removed by washing or other means. आप ऐसा मत सोचना कि आप उसको you can say wash कर दोगे तो खत्म हो जाएगा. वो पेस्टिसाइड्स उसके अंदर ही रहेंगे. ठीक है, तो वॉश करने से सारे पेस्टिसाइड्स नहीं चले जाते. सो दिस थिंग्स यू हैव टू लर्न. एंड जिसको बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. ओके, सो वी हैव कवर्ड 2 टॉपिक्स. आपको अच्छे से ये टॉपिक्स, जैसे ही ये वीडियो आप देख ले तो फिर वापस पूरा जो है पेजेस जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था. सो फ्रॉम दिस पेज आपको ये पेज से लेके पूरा पढ़ना है जहां तक खत्म नहीं होता है. ओके, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वापस वीडियो देखना है जो मैंने पावर पॉइंट में एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन वेरी नाइसली. और फिर भी समझ में नहीं आता है देन यू हैव टू मैसेज मी. ओके, आपको मुझे मैसेज करना है. सो गाइस, माई सेल्फ पटेल जय फ्रॉम डॉल्फिन एकेडमी. सो आप मुझे मैसेज या कुछ भी कर सकते हो. ठीक है.